بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 144 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ترجمہ: ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا منہ کرنا آسمان کی طرف، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ لو اب پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اے مسلمانوں، جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کرو اپنے منہ اس کی طرف، اور بے شک وہ جنہیں کتاب دی گئی ضرور جانتے ہیں کہ یہ حکم برحق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ تفسیر: علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے قبلے کا حکم منسوخ ہوا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو یہاں کے اکثر باشندے یہودی تھے۔ اللہ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو یہودی خوش ہو گئے۔ چند ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سمت رخ کر کے نماز پڑھی۔ آپ کو قبلہ ابراہیمی ازحد پسند تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے اور نگاہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھتی رہتی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، قد نرى سے لے کر فولوا وجوہکم شطرہ تک۔ یہود تو اس سے تشویش پیدا ہوئی، وہ کہنے لگے ما ولہم عن قبلاتہم اللاتی کانوا علیہا، کس چیز نے ان مسلمانوں کو اپنے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ اب تک تھے۔ قل اللہ المشرق والمغرب، آپ فرمائیے اللہ کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، اور فرمایا فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، سورہ بقرہ، اور فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر آپ اب تک رہے، مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں کہ کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول کی اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں۔ ابن مردویہ نے بروایت اکرمہ حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کی ادائیگی سے فارغ ہونے کے بعد سر اقدس کو آسمان کی طرف اٹھاتے تو اللہ یہ آیت نازل فرمائی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ترجمہ: تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ لو اب اپنا چہرہ پھیر لو مسجد حرام کی طرف، کعبہ کی طرف، میزاب رحمت کی طرف۔ جبرائیل علیہ السلام نے جماعت کروائی۔ حاتم نے مستدرک میں یحییٰ بن قطع سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمرو کو مسجد حرام میں میزاب کے سامنے تشریف فرما دیکھا۔ آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا میزاب کعبہ کی طرف۔ پھر لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور شیخین نے اسے روایت نہیں فرمایا۔ ابن ابی حاتم نے یعلا بن عطا سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ دیگر علماء کا یہی قول ہے۔ امام شافعی کا ایک قول یہی ہے کہ عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ امام شافعی کا دوسرا قول اور اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ جخت قبلہ کی طرف منہ کرنا مراد ہے، جیسے حاکم نے علی بن ابی طالب سے روایت کیا ہے کہ شطرہ سے مراد اس کی طرف ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے اور شیخین نے اسے روایت نہیں فرمایا۔ ابو العالیہ، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، قتادہ، ربیع بن انس وغیرہ کا یہی قول ہے۔ جس طرح ایک اور حدیث میں ہے مشرق و مغرب کے مابین قبلہ ہے۔ قرطبی کا قول ہے ابن جریج نے بروایت عطا ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ اہل مسجد کا قبلہ ہے اور مسجد قبلہ ہے حرم والوں کا، اور حرم مشرق و مغرب کے مابین میری امت میں سے اہل زمین کا قبلہ ہے۔ ابو نعیم فضل بن دکین نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر 16 یا 17 ماہ تک نماز ادا کی۔ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا ایک آدمی نکلا، اس کا گزر اہل مسجد پر ہوا، وہ رکوع کی حالت میں تھا۔ اس شخص نے کہا میں اللہ کے نام سے گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مکہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ عبدالرزاق نے حضرت برا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے
तो 16-17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबला की तरफ रुख करना महबूब था। चुनांचे ये हुक्म नाजिल हुआ तो आप काबा की तरफ फिर गए। निसाई ने अबू सईद बिन मुअल्ला से रिवायत किया है कि अहद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम लोग मस्जिद आया करते थे और नमाज अदा करते। एक दिन हमारा गुजर हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर पर बैठे खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। मैंने ख्याल किया जरूर कोई बात हुई है। मैं बैठ गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, कद नारा तकल्लुबा वजही का। यहाँ तक कि आप आयत से फारिग हुए तो मैंने अपने साथी से कहा, आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे उतरने से कबल 2 रकातें पढ़ लें, इस तरह हम सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले हो जाएंगे। हम एक सतून के पीछे हो गए और नमाज पढ़ ली। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर से उतरे और लोगों को उस दिन की ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। इब्न मर्दुया ने हज़रत इब्न उमर से इसी तरह रिवायत किया है कि बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई और ये सलात अल-वुस्ता यानी दरमियानी नमाज है। और मशहूर ये है कि काबा की तरफ मुँह करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले असर की नमाज अदा की। इसीलिए अहले किबला को अगली फजर तक इल्म न हो सका। हाफिज़ अबू बकर बिन मर्दुया ने हज़रत नुवैला बिनत मुस्लिम से रिवायत किया है, उन्होंने इरशाद फरमाया, हमने मस्जिद बनी हारसा में ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ी। हमारा रुख मस्जिद एलिया बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। हमने 2 रकातें अदा की थी कि किसी शख्स ने आकर बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत हराम की तरफ मुँह कर लिया है। तो औरतें हम में से मर्दों की जगह और मर्द औरतों की जगह चले गए। इस तरह हमने बकाया 2 रकातें मस्जिद हराम की तरफ मुतवज्जा होकर अदा की। बनु हारसा के एक आदमी ने मुझे बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। इब्न मर्दुया ने अमारा बिन औस का कौल नकल किया है कि हम बैतुल मुक़द्दस के रुख पर दौरान नमाज रुकू की हालत में थे कि दरवाजे पर किसी निदा देने वाले ने निदा दी कि किबला काबा की सिमत तब्दील हो गया है और हमारे इमाम के सामने गवाही दी। चुनाचा वो मर्द और बच्चे काबा की तरफ घूम गए। दरा हाल ये कि सब रुकू में थे। कौला वहाईसुमा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शत्रा। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जहात शर्क़ व ग़र्ब और शुमाल व जुनूब की तरफ से काबा की तरफ मुँह करने का हुक्म इरशाद फरमाया। हालत सफ़र में नफल नमाज के सिवाय इस हुक्म में कोई इस्तिस्ना नहीं है। हालत सफ़र में वो जिस तरफ चाहे मुँह करके नमाज पढ़ सकता है जबकि उसका दिल काबा की तरफ हो। इसी तरह लड़ाई के दौरान जब तलवारें चल रही हों जिस तरफ चाहे मुँह करके नमाज पढ़ सकता है। इसी तरह वो शख्स जिसे सिमत किबला का इल्म ना हो अपने इज्तिहाद से नमाज पढ़े अगरचे हकीकत में वो किबला की सिमत में ना भी हो, क्योंकि अल्लाह ताला किसी नफ्स को तकलीफ नहीं देता मगर उसकी हिम्मत के मुताबिक। मसला मालकिया ने इस आयत से ये इस्तिदलाल किया है कि नमाजी अपने सामने देखेगा ना कि अपने सजदे की जगह, जैसा कि इमाम शाफी, अहमद और अबू हनीफा का मज़हब है। मालकिया ने आयत करीमा फवल्ले वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम से इस्तिदलाल करते हुए ये कहते हैं कि सजदे की जगह देखने से नमाजी को जो बतकल्लुफ़ झुकना पड़ेगा और ये कमाल क़याम के मुनाफी है। बाज़ दीगर मालकी उलमा की राय है कि नमाजी को बवक्त क़याम अपने सीने की तरफ निगाह रखना चाहिए। शरीक अल-काज़ी का कौल है कि हालत क़याम में वो अपने सजदे की जगह निगाह मरकूज़ करे, जैसा कि जमहूर उलमा की राय है, क्योंकि उससे मुकम्मल खुशू व हुज़ू हासिल होता है। एक हदीस से भी इस राय की तायीद होती है और हालत रकू में अपने पाँव की तरफ और हाल सजूद में नाक की तरफ और हालत कादा में गोद में निगाह जमाए रखे। कौला व इन्नल्लज़ीना उतुल किताब ला यअलमूना अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम, यानी जिन्होंने तुम्हारे काबे की सिमत मुँह करने और बैतुल मुक़द्दस से रुख तब्दील करने को पसंद नहीं किया, ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह ताला आपका रुख उस तरफ फेर देगा, क्योंकि उनकी किताबों में उनके अम्बिया की ज़ुबानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी सिफ़ात व अलामात मौजूद हैं। और अल्लाह ताला ने जिन हुसूसियात व इम्तियाज़ात और शरीयत कामला से नवाजा है का तज़कार जमील मौजूद है, लेकिन अहले किताब हसद, कुफर और अन्नात की बिना पर उसे छुपाते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन अल्फाज के साथ उन्हें धमकी फरमाई, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, अल्लाह ताला तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 145 145
वला इन आतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयातिम मा ताबिउ किबलतक वमा अंता बिताबीन किबलतहुम वमा बाज़ुहुम बिताबीन किबलत बाज़ी वला इन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बादि मा जाअक मिनल इल्मी इन्नका इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा, और अगर आप ले आएं अहले किताब के पास हर एक दलील, फिर भी नहीं पैरवी करेंगे आपके किबले की, और ना आप पैरवी करने वाले हैं उनके किबले की, और ना वो एक दूसरे के किबले को मानने वाले हैं, और अगर बफर्ज मुहाल आप पैरवी करें उनकी ख्वाहिशों की, उसके बाद कि आ चुका आपके पास इल्म, तो यकीनन आप उस वक़्त ज़ालिमों में शुमार होंगे। तफसीर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहूद के कुफर, हठधर्मी और शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म होने के बावजूद उनकी मुखालफत का बयान फरमा रहे हैं कि अगर वो उनके सामने अपनी सच्चाई की तमाम दलीलें भी कायम कर दें तो भी वो उसकी इत्तबा नहीं करेंगे और अपनी ख्वाहिशात को नहीं छोड़ेंगे। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना हक्कत अलैहिम कालिमातु से लेकर अल अज़ाब अल अलीम, सूरह यूनुस। तर्जुमा, बेशक वो लोग साबित हो चुकी है जिन पर आपके रब की बात वो ईमान नहीं लाएंगे, अगरचे आ जाएं उनके पास सारी निशानियां, जब तक कि वो ना देख लें दर्दनाक अजाब। इसीलिए यहाँ फरमाया, अगर आप अहले किताब के पास ले आएं हर दलील, तो फिर भी वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। कौला वमा अंता बिताबीन किबलतहुम, इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से अवामिर इलाहिया के पाबंद हैं। जिस तरह वो अपनी आरा और ख्वाहिशात नफ्स के गुलाम हैं, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अताअत और उसकी खुशनुदी के ताबे हैं। वो किसी हाल में भी उनकी आरजुओं की इत्तबा करने वाले नहीं। बैतुल मुक़द्दस की तरफ उनका रुख करना इस वजह से नहीं था कि यह यहूद का किबला है, बल्कि ये तो अल्लाह ताला का हुक्म था। फिर अल्लाह ताला ने उलमा को हक की मुखालफत करने से तंबीह फरमाई। यहाँ बज़ाहिर खिताब अगरचे हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, लेकिन मुराद उम्मत है। चुनाचा फरमाया, वला इन तबाता अहवाअहुम मिन बादी मा जाअका मिनल इल्मी इन्नका इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। सूरह बकरा आयत नंबर 147, 147, 146 और 147। अल्लज़ीना आतैनहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्ना फरीक़म मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतारीन। तर्जुमा, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो पहचानते हैं उन्हें जैसे वो पहचानते हैं अपने बेटों को, और बेशक एक गिरोह उनमें से छुपाता है हक़ को जानबूझकर। ये हक़ है तेरे रब की तरफ से, तो हरगिज़ न बन जाना शक करने वालों से। तफसीर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात की खबर दे रहे हैं कि अहले किताब उलमा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की हक़ानियत से बखूबी आगाह हैं, जिस तरह उनमें से कोई अपने बेटे को पहचाने। किसी चीज़ की सेहत और यकीन की वक्त अहले अरब बतौर ज़बुल मिस्र यूँ कहा करते थे, जिस तरह के एक हदीस में है कि एक शख्स के साथ एक छोटा बच्चा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ़्त फरमाया, क्या ये तेरा बच्चा है? उसने अर्ज़ की, हाँ या रसूलल्लाह, आप भी गवाह रहिए। आपने फरमाया, ना तो उस पर पोशीदा है और ना वो तुझ पर। कर्तबी का कौल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मरवी है कि आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम से कहा, क्या हज़ूर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह जानते हैं जिस तरह अपने बेटे को? फरमाया, हाँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा। आसमान का अमीन ज़मीन के अमीन पर उसका हुलिया और औसाफ लेकर उतरा तो मैंने उसे पहचान लिया, लेकिन मुझे अपने बेटे के बारे में खबर नहीं कि उसकी माँ ने क्या किया। मैं कहता हूँ इससे मुराद ये भी हो सकता है कि वो तमाम लोगों में से आपको पहचानते हैं। आदमी अपना बेटा बिला तरद्दुद और शक के तमाम लोगों से पहचान लेता है। फिर अल्लाह ताला ने खबर दी कि उस सिद्क और इल्मी मर्तबे के बावजूद वो अपनी कुतब में बयान करदा प्यारे नबी की सिफ़ात को लोगों से छुपा लेते हैं। आखिर में अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन को इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ उतारा गया है वो हक है, उसमें किसी किस्म के शक वार्तियाब की गुंजाइश नहीं। चुनाचा फरमाया, अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतारीन। सूरह बकरा आयत नंबर 148, 148। वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्ताबिकुल खैरात ऐना मा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। तर्जुमा, और हर कौम के लिए एक सिमत मुकर्रर है, वो उसी की तरफ मुँह करती है। बस आगे बढ़ जाओ दूसरों से नेकियों में, तुम कहीं हो ले आएगा अल्लाह ताला तुम सबको,
यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तफसीर हूफी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि इससे मुराद अहले अदियान हैं। फरमाते हैं हर कबीले का किबला है जिसे वो पसंद करते हैं और अल्लाह की तवज्जो उस तरफ है जिस तरफ मोमिनीन है। अबू अलिया का कौल है कि यहूद का भी किबला है, नसारा का भी किबला है और ए उम्मत तुम्हें अपने हकीकी किबला से आगाह फरमा दिया। मुजाहिद, अता, जहाक, रबी बिन अंस और सदी का यही कौल है। मुजाहिद की दूसरी रिवायत और हसन का कौल है कि हर कौम को काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। इब्न अब्बास, अबू जाफर, बाकिर और इब्न आमिर ने मुवल्लिहा को मुवल्लाहा करके पढ़ा है। यह आयत करीमा इस आयत के मुशाबे है। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतम व मिनहाजा से लेकर कुंतुम फीही तख्तालिफून, सूरह माइदा। तर्जुमा हर एक के लिए बनाई है हमने तुम में से एक शरीयत और इल्म की राह, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो बना देता तुम सबको एक ही उम्मत, लेकिन आजमाना चाहता है तुम्हें उस चीज़ में जो उसने दी है तुमको, तो आगे बढ़ने की कोशिश करो नेकियों में। अल्लाह की तरफ ही लौट कर आना है तुम सब ने, फिर वो आगाह करेगा तुम्हें जिन बातों में तुम झगड़ा करते थे। और यहाँ फरमाया ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, यानी इजसाद व अबदान के जुदा होने के बावजूद उन्हें जमा करने पर कादिर है। सूरह बकरा आयत नंबर 149, 150, 149, 150। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल-हुक्कु मिन रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शत्रहु लियल्ला यकूना लिन्नासि अलैकुम हुज्जतुन इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तख्शौहुम वख्शौनी वलियुतिम्मा निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तख्तदून। तर्जुमा और जहाँ से भी आप बाहर निकलें तो मोड़ लिया करें नमाज के वक्त अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ, और बेशक यही हक है आपके रब की तरफ से, और नहीं अल्लाह ताला बेखबर जो कुछ तुम करते हो। और जहाँ से आप बाहर निकलें तो मोड़ लिया करें अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ, और ऐ मुसलमानों जहाँ कहीं तुम हो तो फेर लिया करो अपने मुंह उसकी तरफ, ताकि ना रहे लोगों को तुम पर एतराज़ की गुंजाइश। वजूज़ उन लोगों के जो नाइंसाफ़ी करें उनसे सो ना डरो तुम उनसे, बल्कि सिर्फ मुझसे डरा करो ताकि मैं पूरा कर दूं अपना इनाम तुम पर, ताकि तुम राह रास्त पर साबित कदम रहो। तफसीर तमाम रुए ज़मीन पर इस्तकबाल किबला का यह तीसरा हुक्म है। 3 मरतबा इस तकरार में हिकमत क्या है उसमें उलमा का इख्तलाफ है। एक कौल के मुताबिक ये ताकीद है क्योंकि कुरान करीम में सबसे पहला हुक्म मनसूख हो रहा था, जैसा कि इब्न अब्बास वगैरह ने तसरीह की है। एक कौल ये है कि ये उस हुक्म की मुख्तलिफ सूरतें हैं। पहला अमर उसके लिए काबा जिनके बिल्कुल सामने हो, दूसरा उस शख्स के लिए जो मक्का में हो लेकिन काबा को ना देख रहा हो, और तीसरा हुक्म उनके लिए है जो दीगर ममालिक में हो। फखरुद्दीन राजी ने यही तौजीह की है। कर्तवी का कौल है कि पहली आयत का हुक्म अहले मक्का के लिए, दूसरी जो दीगर शहरों में है, और तीसरी आयत का हुक्म उनके लिए है जो हालत सफ़र में हो। कर्तवी ने इस जवाब को तरजीह दी है। एक कौल यह है कि तीनों हुक्मों का ताल्लुक एक दूसरे से है। पहले फरमाया कद नारा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा से लेकर व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताबा लयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून। इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूलियत दुआ का जिक्र है कि आपके पसंदीदा किबले की तरफ आपका रुख फेर दिया गया। दूसरी आयत में वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल-हक्कु मिन रब्बिका वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, फरमाया कि यही हक है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद करते हैं और उससे राजी हैं। तीसरे अमर में हिकमत यह है कि मुखालिफ यहूद के लिए कता हुज्जत हो जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके किबला की तरफ रुख करने से मुजादला किया करते थे, हालांकि अपनी किताबों से वे उस बात से बखूबी आगाह थे कि आपको किबला इब्राहिमी की तरफ फेर दिया जाएगा। इसी तरह मुशरिकीन अरब के लिए भी इसमें तमाम हुज्जत है जो काबा की ताज़ीम करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसकी तरफ रुख करना उनके लिए बाइस इत्मीनान था। इस तकरार में और बहुत सी हिकमतें बयान की गई हैं जिन्हें राजी वगैरह ने तफसीलन बयान किया है। कौला ली अल्लाह यकून लिन्नासी अलैकुम हुज्जतुन, यानी अहले किताब जो ये बात बखूबी जानते हैं कि इस उम्मत का किबला काबा शरीफ होगा, वरना उन पर एतराज़ हो सकता था कि दावा तो मिलत इब्राहिमी का हुआ और उनके किबले की तरफ मुँह भी नहीं करते। नीज़ उसमें यहूद के एतराज़ का भी जवाब है जो ये दावा करते थे
کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے قبلہ میں ہمارے ساتھ برابر ہیں، اور یہ روایت اظہر ہے۔ ابو العالیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جنہوں نے تبدیلی کعبہ کے وقت کہا تھا کہ آپ کو اپنے آبائی گھر اور اپنی قوم کے دین کا شوق بڑھ گیا ہے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ عنقریب آپ ہمارے دین کی طرف بھی پھر جائیں گے جس طرح آپ نے ہمارا قبلہ اختیار کیا ہے۔ ابن ابی حاتم کا کہنا ہے کہ مجاہد، عطا، ضحاک، ربیع بن انس، قتادہ اور صدی سے یہی مروی ہے۔ ان لوگوں نے آیت للذین ظلموا منہم کا مصداق مشرکین قریش کو قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں نے ظلم کی توجیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دین ابراہیم پر ہے، اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ملت ابراہیمی ہے تو یہ اس سے رخ نہ پھیرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا پسند فرمایا، اس میں کوئی حکمت تھی۔ آپ نے اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، پھر آپ کو قبلہ ابراہیمی یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی بھی بجا آوری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانے والے ہیں، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی امر الہی سے انحراف نہیں فرماتے، اور آپ کی امت آپ کی پیروکار ہے۔ قولا فلا تخشوہم وخشونی، یعنی تم سرکشوں کے شبے سے مت ڈرو، صرف اللہ سے ہی ڈرا کرو، وہ ذات قدوس ہی اس بات کی سزاوار ہے کہ اس سے خشیت اختیار کی جائے۔ قولا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ کا عطف لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ پر ہے، یعنی تحویل کعبہ کی جو نعمت میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کا مقصد ہے کہ شریعت ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یعنی سابقہ امتیں جس سے بہک گئیں ہم نے تمہیں اس کی طرف ہدایت عطا فرمائی اور اسے تمہارے ساتھ خاص کر دیا، اسی لیے یہ امت تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ قرار پائی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔